student. This is the fifth lecture for Applied Thermodynamics BME 503. In this video, we will cover what is the reason of knocking in a spark ignition engine. So before going through the topic, we have to understand some keywords related to it. The first keyword is the compression ratio and the another one is the pre-ignition. So let's start the topic. First we have to talk about compression ratio. So we have seen that, or we are seeing that the piston cylinder arrangement, and we also know that there are four stages in engine. First one is the suction or the stroke, or after that there is compression, and furthermore expansion stroke, and at the last there is exhaust stroke. So before the suction process, the carburetor is used for the proper mixing of air and fuel, and after the proper mix up is complete, then with the help of inlet manifold it will reach inside the cylinder. So when the suction stage is complete and all the air or fuel come inside the cylinder, then the volume at that point is known as V1. Okay, suppose that when the piston is bottom dead center and the volume above it is known as V1. We are saying the volume above the piston when the piston is at the bottom dead center is V1. And when the piston compress this, or we can say that when the piston is moving from bottom dead center to top dead center, suppose this one is the top dead center, then it compresses the air or fuel mixture. So by compressing the air and fuel mixture, its pressure is increased and volume is decreased. So when the piston reaches to the top dead center, then the volume is V2. So compression ratio is the ratio of volume of air or fuel before compression to the volume of air plus fuel or charge after the compression. So suppose we are saying that at the initial condition the volume is V1 and the pressure is P1, and at the last when the volume is V2 then the pressure is P2. Okay, so we are saying that suppose this is the first point and this is the another point, and stage is going from like that. So the volume is continuously decreasing. So compression ratio, we are saying RK, suppose that RK V1 upon V2, volume before compression to the volume after compression. This is the basic idea related to the compression ratio. And for the spark ignition engine, the range of compression ratio lies from 6 to 10. Okay, so this is the basic definition of compression ratio: volume in the cylinder before compression to the volume of cylinder after compression. Okay, and another keyword is the pre-ignition. Pre-ignition is nothing but the premature combustion of fuel plus air inside the cylinder. That is known as pre-ignition. There are different aspects related to it for the pre-ignition, and we will try to discuss after that. So what is knocking? Our topic is knocking in a spark ignition engine. So before going to the spark ignition engine, we are generalize the term knocking. Knocking is nothing but the loud pulsating noise generated inside the engine, or just like a hammer blow. So when this noise come across inside the engine, then vibrations are produced, and that vibrations transfer from the engine to the remaining part of the body. The knocking term is a very generalized term. It is for the spark ignition and for the compression ignition also. ये हमारे दोनों के लिए हो सकता है, आपका spark ignition के लिए भी हो सकता है, compression. तो हमारा टॉपिक है basically the knocking in spark ignition. So there are two position of the piston and cylinder. हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारी दो पोजीशन है. फर्स्ट वन आपकी ये पोजीशन है, सेकंड वन आपकी ये पोजीशन है. ठीक है, तो सपोज कर रहे हैं कि जैसे हमने पहले बात करा कि एयर और फ्यूल आपका यहाँ पे सपोज करिए आ गया है, आपका सक्शन स्ट्रोक कंप्लीट हो गया है, तो अगला स्ट्रोक क्या है आपका कंप्रेशन स्ट्रोक.
तो कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होगा कि पिस्टन क्या करेगा, इसी एयर और फ्यूल को कंप्रेस करेगा, मतलब पिस्टन ऊपर तरफ मूव करेगा। जब पिस्टन ऊपर तरफ मूव करेगा तो बेसिकली क्या होगा कि हमारा जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर होगा वो कंप्रेस होगा और उसका प्रेशर बढ़ेगा, साथ साथ में टेम्परेचर बढ़ेगा। तो अगर सपोज करो कि हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो इस पे एयर और फ्यूल है वो कंप्रेस हो रहा है, ठीक है, और हमने कहा था कि जनरलाइज किया था 6:10 आपका कंप्रेशन रेशियो स्पार्क इग्निशन इंजन के लिए होता है, ठीक है। लेकिन हमने कहा कि हमने इसको सपोज करिए एक अबव थोड़ा सा इसके कंप्रेस कर लिया और जो फ्यूल था उसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर अचीव हो गया, या आपका पेट्रोल का जो भी आपका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर है वो जैसे ही अचीव होगा तो फ्यूल क्या करेगा, बर्न होगा। इसी चीज़ को हम स्पार्क प्लग से कराते हैं। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि अगर स्पार्क प्लग अपना स्पार्क नहीं दे पाया और उससे पहले ही क्या हुआ हमारा कि कंप्रेशन इतना ज़्यादा हो गया कि जिसकी वजह से सेल्फ इग्निशन उसका आपका पेट्रोल का अचीव हो गया, तो जैसे ही सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पेट्रोल का अचीव हो गया तो क्या हुआ आपका कि वो बर्न हो जाएगा और ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि स्पार्क प्लग ने स्पार्क नहीं दिया, सिर्फ कंप्रेशन की वजह से क्या हुआ कि वहाँ पे क्या हो गया, बर्निंग हो गई। इसके मतलब क्या होता है कि एक एबनॉर्मल कंबशन हो गया हमारा, जिसकी वजह से क्या है कि एक लाउड पल्सेटिंग नॉइज प्रोड्यूस हो रहा है, एंड दिस इज अ प्रॉब्लम एंड दैट प्रॉब्लम इज नोन एज नॉकिंग, ठीक है। एक तो हमारा ये हुआ कि कंप्रेशन रेशियो के हिसाब से हमने समझ लिया। सपोज करिए एक हमारा क्या है, कंप्रेशन रेशियो, ठीक है। कंप्रेशन रेशियो के हिसाब से हमने समझा कि किस तरीके से अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो साथ साथ में टेम्परेचर बढ़ रहा है और उसकी वजह से क्या है, पेट्रोल सेल्फ इग्नाइट कर जा रहा है, जिसकी वजह से क्या है, नॉकिंग प्रॉब्लम हो रही है। एक ये है, और एक है कि हम कह रहे हैं कि अगर हमारा ये इस चीज़ से नहीं हो रहा है, अगर सपोज करो कंप्रेशन रेशियो हम कंट्रोल रख रहे हैं और ठीक है, तो अगले में क्या है, एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि अगर हाई स्पीड आपकी चल रही है, सपोज करिए कि कोई भी व्हीकल है आपका हाई स्पीड पे चल रहा है, तो हाई स्पीड पे सपोज करिए जब वो चलेगा तो क्या होगा कि बेसिकली सपोज करिए आपका अलग अलग पॉइंट्स पे क्या होगा कि आपकी हीट जो होगी सिलेंडर के अंदर जनरेट होने लगेगी। अलग पॉइंट पे सपोज करो एग्जॉस्ट वाल्व पे आपका क्या हुआ कि वो बिल्कुल हीट हो गया, या आपका इनलेट वाल्व हीट हो गया, या स्पार्क प्लग की टिप हीट हो गई, तो क्या होगा कि आप स्पार्क प्लग स्पार्क तो दे नहीं रहा है, लेकिन क्या हुआ कि अलग अलग जोन में हीटिंग क्रिएट हो गई। क्यों? क्योंकि आपने क्या हुआ कि सपोज करो हाई स्पीड अचीव कर ली, और जिसकी वजह से क्या हुआ कि आपका फ्यूल जो कंप्रेस हो रहा था वो अपने कंप्रेशन रेशियो की वजह से तो बर्न नहीं हुआ, लेकिन हीटिंग जोन सपोज करिए एग्जॉस्ट वाल्व है और यहाँ पे एक हीटिंग जोन बन गया। तो जब भी पिस्टन सपोज करिए बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ आ रहा है और ये कंप्रेस हो गया, लेकिन कंप्रेस होने के बाद क्या हुआ कि इसे एक हीटिंग जोन मिल गया यहाँ पे, और स्पार्क प्लग ने स्पार्क नहीं दिया, और उससे पहले ही इस हीटिंग जोन से ही क्या हो गया, ये इग्नाइट हो गया। तो क्या होगा, ये भी क्या होगा, सेम टेंडेंसी प्रोड्यूस करेगा, लाउड पल्सेटिंग नॉइज प्रोड्यूस करेगा, एंड दैट लाउड पल्सेटिंग नॉइज इज नोन एज नॉकिंग। ये हमारी प्रॉब्लम है। तो हम क्या करते हैं कि अगर कंप्रेशन रेशियो हमारा मतलब ये बढ़ाना है, हमें हाई कंप्रेशन रेशियो पे वर्क करना है, तो हम क्या करते हैं कि पेट्रोल पे टेट्रा इथाइल लेड ऐड कर देते हैं, लेकिन अब कॉमनली यूज नहीं है तो हम क्या करते हैं आइसो ऑक्टेन एंड एनहेप्टेन का इस्तेमाल करते हैं। तो दिस आर द कॉमन प्रॉब्लम रिलेटेड टू द स्पार्क इग्निशन इंजन नॉकिंग। तो ये हम समझ गए कि नॉकिंग एक है कि कंप्रेशन रेशियो आप बढ़ा दे रहे हैं तो आपका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर अचीव हो जा रहा है पेट्रोल का, ठीक है। तो इनसाइड द सिलेंडर आपके क्या हो रहा है कि बर्निंग हो जा रही है, तो एबनॉर्मल बर्निंग हो जा रही है, तो उससे नॉकिंग प्रोड्यूस हो रही है। या ये हुआ कि आप हाई स्पीड पे व्हीकल्स को रन करा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है कि अलग अलग जोन्स पे क्या है, या कहीं सपोज करिए आपका ये कोई जोन है स्पार्क प्लग का, या टिप पे ही स्पार्क प्लग का एक जोन बन गया, हीट हो गया, और उसकी मतलब स्पार्क प्लग ने अपना स्पार्क नहीं दिया, लेकिन उस हीट जोन से ही क्या हुआ कि पेट्रोल ने हीट ले ली और वो इग्नाइट हो गया। तो इससे भी नॉकिंग आपकी प्रोड्यूस हो सकती है। तो अब कॉमन इसका है कि आइसो ऑक्टेन एंड एनहेप्टेन हम मिलाते हैं ताकि हमारा क्या हो सके, हाई कंप्रेशन रेशियो पे आपका बेसिकली वर्क कर सके इंजन आपका। So all this is about the knocking in spark ignition engine. If any student have any query or any question, kindly mention. Thank you.